इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क तक आ सकता है। कह रहे ठीक है मान्य भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, करें कैसे? What are the various sources? What are the various sources of human capital formation? कह रहे आप एजुकेशन पे स्पेंड करोगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, एजुकेशन लेवल एनहांस होंगे। हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होंगी, लोगों के हेल्थ स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, बीमार कम होंगे, बीमारी कम फैलाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग करोगे, उनके स्किल्स एनहांस होंगे। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, आप कहीं और जाओगे तो आपको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लोग करते हैं ना कि माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स। बेटर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, बेटर जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं, हायर सैलरीज के लिए भी जा सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन गैदर करके भी आपके स्किल्स एनहांस होते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। There are a number of ways by which human capital can be increased. The different sources of human capital formation are: number one, expenditure on education. Proper utility of manpower depends on the system of education and training of people. Labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person, which enables him to generate more income than the uneducated person. आप educated हो तो कोई नई चीज भी सीखनी हो तो आपके अंडरस्टैंडिंग और स्पीड ऑफ लर्निंग, ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी वो काफी हाई होगी। यस और नो? आप पढ़े लिखे हो तो अगर प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा जल्दी आप सीख पाएंगे। Economists have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation as it accelerates the development process. Educated होगे तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप भी सीख पाओगे। अगर आपको एक यूजर मैनुअल भी पकड़ा दिया तो आप अपने आप पढ़ के वो चीज सीख सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप पढ़े लिखे हो। Spending on education by individuals is similar to spending on capital goods by companies. Individuals invest in education to increase their future income and raise their living standard. Expenditure on education turns human beings into human capital. Education contributes to economic growth because education confers higher earning capacity. Normally जितने ज्यादा पढ़े लिखे होगे उतनी ज्यादा आप इनकम जनरेट कर पाओगे। नॉर्मली, कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, बट यस नॉर्मली। It gives better social standing and pride. मेरा बेटा डॉक्टर है। It enables one to make better choices in life. It provides knowledge to understand the changes taking place in the society. आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बैंक ये रेपो रेट क्यों बढ़ा दिया है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। You will be able to understand the changes taking place in the economy. क्यों एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया ऑयल के प्रोडक्ट्स पे, क्यों टैक्सेस बढ़ा रहे हैं कुछ चीजों पे। It also stimulates innovations. It facilitates adaptation of new technologies. अगर एजुकेशन लेवल लो होता है तो वो तो वैसे ही they are not too happy with the changes taking place in the economy. They are reluctant to adapt to changes. कि नहीं जैसा है चलने दो, change मत करो। तो education levels help us adapt to the new technologies. So one of the most important source of human capital formation is spending on education, expenditure on education. Second, expenditure on health. Health expenditure is a source of human capital formation. How? As it directly increases the supply of healthy human force. Poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower. A sick labor without access to medical facilities is compelled to abstain from, छुट्टी लेनी पड़ेगी उसे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, तो भाई साहब आप घर बैठो। एंड देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, छुट्टी लेगा तो उतनी देर काम नहीं होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and to improve quality of life,
in the society, quality of life of the people in the society. Adequate food and proper nourishment to people along with adequate health and sanitation facilities leads to qualitative improvement in human capital. काम करना तो छोड़ो, आप अपनी बात करो कि जब आप बीमार होते हो तो क्या आपका दिमाग उतना काम करता है? क्या आप उतना पढ़ पाओगे? क्या आपका दिमाग उतना प्रोसेस कर पाएगा? नहीं। हेल्दी होगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है, आप पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन एटलीस्ट आप जो सुन रहे हो मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, एनर्जी लेवल हाई होता है. तो हेल्थ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स. Forms of health expenditure. The various forms of health expenditure include amount spent on money spent on preventive medicine known as vaccination. Preventive medicine की vaccination ही लगा लो ना भाई, बीमारी नहीं होगी. Prevention is better than cure. फिर नहीं है, चलो फिर curative medicine, अब तो हो गए आप बीमार तो दवाई खाओ. Medical intervention during illness. एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आपको बीमारी होने से रोकेगा, एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन कि बीमार तो हो गया, चलो अब इसका क्योर ढूंढते हैं, दवाई खिलाओ, इसे इंजेक्शन लगाओ. सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज. So these are some ways by spending on health infrastructure you can create human capital formation. It is one of the important sources. तो पहले हमने पढ़ा expenditure on education, next expenditure on health. Interesting point. On the job training, सबसे ज्यादा ये चीजें सिखाती हैं on the job training, इससे बेटर तो कुछ होता ही नहीं है. तो कितने सारे कोर्सेज होते हैं, अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको 1.5 years आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, किसी सीए के अंडर आपको काम सीखना पड़ेगा. कितने अब इंटर्नशिप हम करते हैं, कितनी सारी चीजें, तो इंटर्नशिप और कुछ नहीं, आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही होती है. डॉक्टर के लिए क्या होता है ना, कितने साल आपको किसी डॉक्टर के साथ नीचे काम करना पड़ेगा. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से बेटर तो कोई चीज ही नहीं होती काम सीखने के लिए. तो आपके वो स्किल्स एनहांस हो रहे हैं. यस और नो, पढ़ाई तो आपने कर ली, ओके, बट इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं दे सकते ना, नुकसान करा दोगे अगर कोई चीज ठीक से काम. एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल नॉलेज तो काम करके ही आएगी. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, as stated earlier, productivity of physical capital is substantially enhanced with the improvement in human capital. Due to this reason, many firms provide on the job training. कहते हैं ना, आपको जॉब लगी है, 6 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, तो 6 महीने आपको ट्रेनिंग काम सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्चुअल काम पे लगाया जाएगा. बड़ी बड़ी कंपनी 3-3 महीने 6-6 महीने पहले ट्रेनिंग देती है. किसी में वीक की ट्रेनिंग होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, बट ट्रेनिंग होती है. Such training has the advantage that it can be provided fast and without much cost. On the job training क्यों फास्ट? काम तो हो ही रहा है, इसे लगा अपने साथ, दिखा कैसे करना है, कुछ करा इससे भी. तो ऑन द जॉब आपको कोई एक्स्ट्रा सेटअप क्रिएट नहीं करना पड़ा, काम ऑलरेडी हो रहा था, आपने कहा कि इसको भी अपने साथ खड़ा करो, इससे भी 2-4 चीजें कराओ ताकि ये भी सीखे. It increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in production of goods and productivity of labor. Such training keeps employees updated with the latest changes in the field of working. On the job training may take different forms. Number one, workers may be trained in the firm itself under the supervision of skilled worker, कि जहां काम चल रहा था वहीं पे ही कि भाई साहब जैसे मैंने बोला कि इसको अपने साथ लगा लो. दूसरा एक होता है ऑप्शन, वर्कर्स में बी सेंट टू ऑफ कैंपस ट्रेनिंग सेंटर्स. एक प्रॉपर होता है ना कि यार ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, अभी हम आपको प्लीज हम रिस्क नहीं ले सकते आपको अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का, आप पहले ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी. क्योंकि ये बड़ा हाई लेवल ऑफ मतलब जैसे कहते हैं ना कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उनको हाथ भी नहीं लगाने दे सकते. करोड़ की कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि वो रिस्क नहीं ले सकते कि किसी ऐसे बंदे को हाथ लगाने दे जिसको वो यूज करना ना आता हो. तो उस केस में क्या होता है ऑफ. अब जैसे एविएशन हो गया, एविएशन तो क्या सीधा मतलब प्लेन चलाते चलाते सीख जाएंगे? क्या हो गया, कोई टेंशन थोड़ी ना है.
पॉपुलेशन हमारी वैसे ही बहुत है, तो डायरेक्ट वहीं पे सीखो नहीं, उनके स्टिमुलेटर्स होते हैं, सिमुलेटर्स होते हैं। तो सिमुलेटर्स में आपको कुछ आवर्स, मतलब सिमुलेटर एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पूरा वो सेटअप कर दिया है कि जिसमें आप ऐसे बैठे हो जैसे आपके कॉकपिट में ही बैठे हुए हो, और आपको डिफरेंट डिफरेंट इमरजेंसीज, लैंडिंग, टेक ऑफ, तो उसमें कराया जाएगा, तो पूरा दिखेगा कि अच्छा अगर आप करते तो क्या इम्पैक्ट आता। तो सिमुलेटर्स मतलब जिसे कहते हैं ना ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होगी ना फिर ये। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वो 2 सीटर सेस्ना होता है उसमें आपको कुछ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर में भेजा आपको, पहले आप ये घंटे कंप्लीट करके आओ, जब इतने घंटे हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे फिर कैप्टन के साइड में आप बैठोगे। वो उसमें पहले तो होता है कि 2 लोग बैठे हैं, आप पीछे साइड में हो, फिर होता है कि अच्छा चलो देख लिया हो गया, अब आप फर्स्ट ऑफिसर बन जाओगे, तो फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन। तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे कि एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग काम करते करते एक्चुअल साइट पे, एक होती है ऑफ साइट ट्रेनिंग कैंपस। After on the job training of employees, firm insists that the workers should work for a specific period of time so that it can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training. अब पैसा इन्वेस्ट करा, रिकवर भी तो करना है। It is a source of human capital formation as return of expenditure on such training in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. Normally ऐसा होता है कि जितना पैसा आपने लगाया उससे कहीं ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, तभी कंपनी पैसा भी लगाती है, क्योंकि उन्हें पता ना कि इनको ढंग से काम सिखाएंगे तो ही हमारा आगे काम ठीक से होगा, प्रोडक्शन ठीक से हो पाएगी। क्या था ये थर्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आगे आजा बेटा, गर्दन मुड़ जाएगी ऐसे ऐसे, जल्दी अब जल्दी बैठ जा, कहीं भी बैठ जा। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, people migrate from one place to another in search of better jobs that fetch them higher salaries. Unemployed people, they migrate from rural areas to urban areas in search of job. गांव से आए हैं यहाँ पे काम ढूंढने के लिए, माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। Technically qualified persons like engineers, doctors, they migrate to other countries because of higher salaries that they may get in foreign countries. Migration in both these cases, in all these cases, involves following cost. खर्चा होगा ना, माइग्रेशन का भी तो इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप कहीं और जाके रह रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नॉर्मली पहले आप अपने घर पे थे, कुछ था जो भी था, कहीं और रिलोकेट करते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नॉर्मली बढ़ जाता है। और एक होती है साइकिक कॉस्ट, घर वालों से दूर कैसे रहूंगा मैं, तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्ट्रेस और लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, खुद खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, इन अ स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप। इसकी वजह से काफी लोग बाहर जाके पढ़ना ही नहीं चाहते कि मम्मी मैं नहीं जाऊँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ऐसा बोलेंगे हम उनको, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल। बट दिक्कत कुछ और होती है, आपके बिना तो मैं रह लूंगी, बट ये सब कौन करेगा? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन as enhanced earnings in the migrated place is more than the increased cost. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सर आप तो खर्चा कर रहे हो, बेटा खर्चा एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ से वहां माइग्रेट करोगे तो आपकी जो इंक्रीज इन सैलरी है, जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है, that would be much more than the money you have spent on migrating. Without अभी तक expenditure on information, last source of human capital formation, expenditure on information. तो क्या क्या करें हमने? expenditure on education, expenditure on health, on the job training, migration and expenditure on information. Expenditures incurred to acquire information relating to labor market and other markets, कि किस जगह पे किस टाइप के लोगों की अवेलेबल रिक्वायरमेंट है, क्या है, तो इन्फॉर्मेशन पे पैसा स्पेंड किया जाता है। गवर्नमेंट की एक्सचेंजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, आप अपना डेटा वहां दें तो फिर गवर्नमेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी कि इस इतनी रिक्रूटमेंट्स यहाँ हो रही हैं, इस चीज में है। आप
भी मतलब काफी बच्चे ये प्लान करते हैं कि अच्छा मूविंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है कि किस टाइप की जॉब्स की डिमांड ज्यादा होगी, क्या पता पायलट की हो, क्या पता पायलट की एक्सेस सप्लाई हो चुकी हो कि ऑलरेडी बहुत सारे पायलट्स हैं और जॉब्स हैं नहीं, तो आप भी वही कोर्स कर रहे हो तो प्रॉब्लम है ना फिर। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It involves amount spent on seeking information about education. आपको डिसाइड करना है कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी में जाएं, तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, रैंकिंग्स हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे कि अगर मुझे उसमें जाना है उसमें कितनी सीट्स हैं, क्या कंपटीशन होगा. Their educational standards and cost of education. For example, people want to know the level of salaries associated with various types of jobs. हर एक कॉलेज के अपने होता है ना कि अच्छा इसकी इस कॉलेज की एवरेज सैलरी, एवरेज पैकेज क्या मिल रहा है कैंपस प्लेसमेंट्स में, तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन ही है. Whether the educational institutes provide the right type of employable skills and at what cost. Information is necessary to make decisions regarding investments in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital stock. So one of the most important question of this entire chapter, what are the various sources of human capital formation?